हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आई होप आप लोग अच्छे हो, मजे में हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, and you people are focusing on every new concepts that is coming on your way. So now I'm going to do this question, and this feels like it is PYQ of somewhere. I don't remember exactly. This is the question I received from Somiti, and this is a very important question, I would say, from modern physics. So this is going to really clarify your every doubts if you have any in what is the force exerted by radiation on any surface if light is falling at some angle or if light is falling on the curved surface, that is the case here. So यहाँ पे हमारे पास स्फीयर है, सो स्फीयर पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लाइट ऐसे फॉल कर रहा है. सो डेफिनेटली लाइट इज फॉलिंग ऑन ए कर्व्ड surface over here, and we have to calculate what is the force that this particular beam is exerting on this sphere. Done है. In the first case, we are asked that if the surface is completely reflecting, in that case, what will be the force exerted? If it is completely absorbing, then kya hoga? And if it is partly absorbing, partly reflecting, such that ratios are given, I mean, coefficient reflection coefficient is given 0.3 and absorption coefficient is given 0.7, then how we will do it? ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए. देखो बेसिक सिंपल सा ये है ना कि अगर तुम्हारे पास एक सरफेस है and if light is falling slanted like this, first of all, draw the normal. Light is falling at an angle theta. So if the surface is completely reflecting, all the light will reflect like this, making an angle theta. Now let's talk about force. Agar hum force की बात कर रहे हैं, then we are talking about some momentum change. And when we are talking about momentum change, we are talking about particle. So यहाँ पे जो light है ना, उसको हम particle की तरह treat करेंगे. And that is why we will talk of photon. So basically एक photon जो है that is colliding with the surface. So you can treat it like you have allowed so many ball to fall along single line onto a surface, and because of collision of each ball with the surface, force will get exerted on it, and that force we have to calculate. So तुम्हें भी पता है कि अगर ऐसे ऐसे balls को आप surface के तरफ फेंकते हो such that it is going away at the same angle, this is a sort of elastic collision. And in case of elastic collision, what happens? I mean, जितना momentum तुम्हारा initially था इस direction में, same momentum will be after collision in this direction. Can we say like that? Yes, in this case we can say, because this is a collision of lighter mass with the very much heavier mass. Okay, so let's focus on the question first. अब देखो force कौन से direction में लगेगा because of reflection. So आपको भी पता है collision की बात कर लो. When photon is hitting here, line of impact is this one, perpendicular to the heavier surface, right? So this is the line of impact, and force during collision acts along the line of impact. So reflection की वजह से force कहाँ लगने वाला है, कौन से direction में? इधर. अब चलो इस फोर्स का वैल्यू निकालो. सो मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाई लैम्डा हम लिखते हैं, राइट. सो कमिंग फोटोन, सिंगल फोटोन की पहले बात करते हैं. मोमेंटम इज एच बाई लैम्डा. फोटोन दैट इज गोइंग अवे, उसके मोमेंटम को आप क्या बोलोगे? माइनस एच बाई लैम्डा. आई मीन डायरेक्शन इज जैसे, सॉरी, माइनस एच बाई लैम्डा ना लिखकर एच बाई लैम्डा लिखो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन, you will do it along the line of impact, keeping in mind the rules of collision. So initial momentum is h by lambda cos theta. Final momentum is minus h by lambda cos theta. Finally, it is in up sense. Initially, it was in down sense. Change in momentum will be 2h by lambda cos theta. Okay. Now, if we know how much time, in how much time this much change in collision is happening, we can calculate force. लेकिन सिर्फ एक photon का collision नहीं हो रहा. There are so many photons falling. So let's say I intensity of light was falling. आई इंटेंसिटी कहने का मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है. सो अगर आपको पावर निकालना है, दैट इज एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, देन यू विल डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी विद द एरिया वेक्टर. सो हियर एरिया वेक्टर विल बी along the normal, intensity is along this line, angle is theta. So exact power will be how much? Ia cos theta. So this much energy is falling per second. And so how many photons are falling per second? One photon meaning how much energy? Hc by lambda. So this energy will have how many number of photons? So number of photon striking per second, Ia cos theta divided by hc by lambda. अब आप देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आप निकाल सकते हो, एन बाई पर सेकेंड इंटू टू एच बाई लैम्डा कॉस थीटा.
ठीक है, बिकॉज दिस वॉज मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन, दिस विल बी मोमेंटम चेंज ऑफ n number of photons striking per second. So overall rate of change of momentum aggregate value, right? So n का वैल्यू आप लिख डालो यहाँ से I a cos theta by hc into what you will be doing into lambda, and here it is how much 2h by lambda cos theta. अब देखो यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कट कर दो. What you are left with, you are left with 2ia by c cos square theta. So this will be the force getting exerted in this direction. अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया है कि सरफेस कंप्लीटली अब्सॉर्बिंग है, इन दैट केस मोमेंटम इधर था h by lambda, it got completely absorbed, right? So change in momentum is how much? H by lambda only. So force in this case will act along the line of fall. So force is acting in this direction. In this case it will have two components of forces, one perpendicular, another parallel to the surface. So यहाँ से भी अगर आप इसको निकालोगे ना, force acting, you will be getting how much? IA by C cos square theta in perpendicular direction. Parallel direction में you can take the component. ठीक है, तुम लोग enough wise हो. So in our question, हमारा क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है. हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक सॉलिड स्फीयर है. अब तुम देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम बात करोगे कि जो इंटेंसिटी आई फॉल कर रही है उसका नेट कितना अमाउंट फॉल कर रहा है, आई मीन इन द on the surface which is along the line of this light travel direction. मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरा दूसरा डायग्राम ले लो. सपोज कर लो यहाँ पे लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है. सो लाइट इज फॉलिंग हॉरिजेंटली ऑन टू दिस डिस्क, एंड दिस डिस्क इज नॉट along the line of light, है ना. इसका जो एरिया वेक्टर है, इस डिस्क का अगर आप एरिया वेक्टर बनाओ तो आप क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर, आई मीन नॉर्मल टू दिस सरफेस. सो दैट विल बी समवेयर हियर. So there is certain angle between light direction and this area vector. So this is not the effective area. अगर इसके area का value a है, then this is not the value of effective area upon which light is falling normally onto it, right? उसके लिए आप कितना area लोगे, इस disk का shadow. So that feels like this. सो इफ दिस एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इफेक्टिव एरिया आप क्या लोगे, a cos theta. And that is why when we calculate intensity, we calculate when we say ki intensity of light I is falling onto a surface, so when we calculate power, that is energy falling per second onto that surface, we calculate it like I dot a. So here what we are trying to do is we are trying to incorporate that effective area for this light falling onto the surface, and that is why we write here I a cos theta. अगर यहाँ पे आप a cos theta को देखो तो that is nothing but the area which will be along the I mean normal to which will be along the direction of light. So this is the concept of effective area. अगर आप यहाँ पे effective area की बात करो ना, तो effective area क्या होगा, if you see carefully, this will be your effective area. ये वाला जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, इसको आप यहाँ पे ले आओ. So it will feel like whatever light is falling onto this curved surface, that has a effective area of this. So basically this is the sphere. इसका effective area ये वाला होगा for this direction of light. If you are letting light fall in this direction, और यहाँ पे तुम्हारा ये what is this? This is solid sphere, right? So इस direction में, क्योंकि ये आई मीन थ्री डायमेंशनली सिमेट्रिकल होता है ना, इस डायरेक्शन में भी आप एक्सिस बना सकते हो. और यहाँ से जो तुम्हारा ऐसा कुछ आई मीन दिस लाइट वाज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा कुछ बनाओ और यहाँ पे ऐसे ले लो. सो सॉरी, ये वाला परपेंडिकुलर नहीं होगा, रुक जा दिखाने दो मुझे, गिव मी सम टाइम. सो यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे ये वाला जो बनाओगे ना, दिस विल बी द इफेक्टिव एरिया. अगेन वैल्यू सेम आएगा पायर स्क्वायर, बट ओरिएंटेशन इज चेंजिंग, डन है. सो हियर इफेक्टिव एरिया विल बी पायर स्क्वायर, बट अगेन आई वोंट सिंपली कैलकुलेट इट विद द इफेक्टिव एरिया, बट आई वांटेड टू गिव यू द आइडिया ऑफ दिस थिंग. अब सपोज कर लो मुझे यहाँ पे निकालना है कि एक फोटोन की वजह से आई मीन हाउ मच फोर्स इज गेटिंग एक्सर्टेड. सो एक फोटोन के लिए यहाँ पे आप इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. सो यू विल ड्रॉ द नॉर्मल हियर, क्योंकि वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन अ सर्फेस एंड इफ surface is perfectly reflecting, सबसे पहले आप normal बनाओ. Angle of incidence is this, angle of reflection will be this, making an angle theta here.
सो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे कि दिस लाइट इज फॉलिंग ऑन ए स्मॉल एरिया एंड दिस स्मॉल एरिया विल बी व्हाट, दैट वी नीड टू क्रैक हियर। आप ध्यान से देखो, मैंने बोला इफेक्टिव एरिया ये होगा। अब ये इफेक्टिव एरिया जो है ना, वो तुम्हारा स्मॉल स्मॉल एरिया का कॉम्बिनेशन है। कैसे? जस्ट जस्ट टॉक अबाउट दिस स्मॉल एरिया, जिसका थिकनेस क्या है, जिसका थिकनेस है तुम्हारा लेट्स से डीएल। ठीक है? सो दिस डीएल इज व्हाट, दिस डीएल इज बेसिकली दिस लेंथ डीएल विच इज कंटेन्ड इन सर्टेन एंगल डी थीटा। ठीक है? एंड यहां से एक सर्कल ऐसा जा रहा है विच इज दिस सर्कल जो मैंने यहां पे बनाया है। ठीक है? सो ओवरऑल व्हेन वी आर टेकिंग लाइट फॉलिंग एट एंगल थीटा, इतने एंगल पे फॉल करने वाले लाइट कितने होंगे, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, ओवरऑल लाइक दैट। ठीक है? सो ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा इसको क्लोज देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये काफी डिफिकल्ट है इसको विजुअलाइज करना। लेकिन अगर थोड़ा भी तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे ऐसे लाइट्स जो है ना, वो तुम्हारे पास इस पूरे सरफेस पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है? उसी तरह से सेकेंड लाइट इफ यू आर टेकिंग, then you are taking care of another area, let's say यहाँ पे, so you are again taking care of another area। ठीक है? so इतना विजुअलाइजेशन जरूरी था आगे जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसको समझने के लिए। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस। सपोज करो आई एम लेटिंग दिस लाइट फॉल एट दिस पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज थीटा। Let's say what I'm taking here is, let's say this strip is contained in what angle, this is contained in an angle d theta। ठीक है? अब यहाँ पे इसका एरिया अगर तुम्हें निकालना है, इसका एरिया, तो ये एरिया कौन सा है बता दूं, ये एरिया ये वाला है। इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? ये एरिया कहने का मतलब ये वाला पोर्शन मैं बात कर रही हूँ। ठीक है? सो एक्चुअली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एरिया? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका रेडियस चेक कर लो। अब इसका रेडियस क्या होगा? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वैल्यू, राइट? सो दिस इज द रेडियस, राइट? सो स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्या होगा? स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू that is sin theta, right? So that is sin theta, small r is your r sin theta, so r sin theta is the radius। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, डी ए आप निकालो, एरिया विल बी, यानी कि इसका एरिया मैं निकाल रही हूँ, लेंथ इसका क्या होगा 2 pi r एंड थिकनेस दिस डीएल, एंड डीएल विल बी हाउ मच, दिस डीएल इज कंटेन्ड इन अ डी थीटा एंगल, रेडियस हियर इज आर, सो डीएल विल बी नथिंग बट आर डी थीटा। सो यहाँ पे अगर आप एरिया निकाल रहे हो ना, लेंथ दैट इज 2 pi r sin थीटा एंड डीएल इज व्हाट, डीएल इज योर आर डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 pi r square साइन थीटा डी थीटा। सो दिस इज योर डीए। अब आप इफेक्टिव सॉरी पावर निकालोगे, आप पावर कैसे निकालोगे, आई डॉट डीए। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एट दिस पॉइंट विल बी नॉर्मल टू द सर्फेस, सो एंगल मेड इज थीटा, सो आई डी अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, आई डी ए कॉस थीटा। ठीक है? सो डीए का वैल्यू ये पुट करोगे एंड कॉस थीटा, डन है? दिस इज द पावर। पावर टेल्स अस व्हाट, पावर टेल्स अस हाउ मच एनर्जी हियर इज फॉलिंग पर सेकेंड। ओके, नाउ हाउ मेनी फोटोन्स विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कितने फोटोन फॉल कर रहे होंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड विल बी इक्वल टू आई डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच सी बाई लैम्डा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट momentum. What is the momentum of this incoming light and what will be the momentum of light getting reflected? वो भी थीटा पे रिफ्लेक्ट होगा। सो इनिशियल मोमेंटम देखो, ये एच बाई लैम्डा है, दिस इज ऑल्सो एच बाई लैम्डा, and here since surface is perfectly reflecting, it is getting reflected like this, and so here collision will happen along the normal to the surface, that is line of impact is this one, force on the photon will act along this line as I stated before। ठीक है? so along the line of impact only you will calculate change in momentum, आप निकाल लो कितना होगा, 2h by lambda cos theta, this is the change in momentum along the line of impact। अब देखो along the line of impact आपने इतना निकाला, अब ये क्या होगा बताओ, this is your what, this is your delta p, done है? So this is along the line of impact, yes। now let's calculate this force thing। force thing क्या होता है तुम्हारा, delta p by delta t।
So this is equal to how much? This is equal to 2h by lambda cos theta into number of photon falling per second. So that is I dA cos theta divided by hc by lambda. ठीक है, सो देखो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एच एच कैंसिल होगा, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2i by c dA cos square theta, and this force we are getting in this direction along the line of impact, right? But we have to calculate force acting on this sphere, so force acting on this exact area, that is the effective area, है ना, क्योंकि मुझे इसी डायरेक्शन का फोर्स निकालना है ना, समझ रहे हो? डन है। सो फोर्स के लिए अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है, डीएफ का वैल्यू आई मीन small force acting along this direction will be df cos theta, and total force will be nothing but integration of df cos theta. So आप यहां से क्या करोगे, df का वैल्यू पुट करो, कितना है 2i by c, इसको तो मैं बाहर ही ले लेती हूँ, दैट इज कॉमन, 2i by c da cos, यहाँ पे पहले से cos स्क्वायर थीटा है, सो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, डीए का वैल्यू चलो रखते हैं, सो 2 पाई आर स्क्वायर, कितना था 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, सो दिस इज साइन थीटा एंड cos क्यूब थीटा आप लिखो पहले, देन डी थीटा, डन है। सो दिस विल बी हाउ मच, 2i by c, पहले इसको आप एक काम करो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई सी, एंड यहाँ पे क्या है तुम्हारा cos क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर लोगे, कैसे, साइन थीटा को कोई भी वेरिएबल मान लो x, एंड इफ यू फाइंड इट, इफ यू कीप इट x हियर, सॉरी cos थीटा को x मानो, सॉरी सॉरी यार, I mean, there is so much to do, right? Cos theta को आप x मान लो, partial differentiation लो, this will become minus sin theta d theta and this is equal to dx. ठीक है, so इसका integration आप कैसे करोगे? This will become x cube sin theta d theta, sorry d theta को आप क्या लिखोगे? dx divided by sin theta with negative sign, right? So it is this. And here sin theta will get cancelled, so this is minus x cube dx, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हो x 4 by 4 with negative sign, and after integrating put the value of x, that is your cos 4 theta by 4 विथ नेगेटिव साइन। अब देखो लिमिट पुट करने की बारी आएगी तो ऐसे ऐसे रेज तुम्हारे कहाँ से, यहाँ से स्ट्राइक करेंगे और यहाँ तक। सो इफ यू आर टेकिंग दिस पॉइंट इज ऑलरेडी गेटिंग टेकन केयर ऑफ, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस होल एरिया 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, सो इस पॉइंट में ये पॉइंट भी कवर हो रहा है sort of. If you are starting from here theta equal to 0 here and going up to theta equal to pi by 2 up to here, you are covering from this point to this point, all points you are covering, ठीक है। so limit will change from where to where, limit you will change from 0 से pi by 2. now what you need to do, अब आप simply क्या करो, values को put कर लो, and after putting the values you will be here getting the answers, ठीक है। so आप एक काम करो, इसको calculate करके देखो कितना आएगा बताओ। so let me put the values for you, यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, एंड 0 से पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 रखोगे 0 होगा, एंड 0 रखोगे -1, माइनस ऑफ -1 1 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम सॉर्ट ऑफ 1/4, है ना। सो 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर आई बाई सी, कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। सो आंसर विल बी हाउ मच, पाई आर स्क्वेयर इंटू आई बाई सी। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था बताओ, फर्स्ट ऑप्शन वॉज 2i पाई आर स्क्वायर बाई सी, नहीं गलत होगा। इफ सर्फेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग देन रेडिएशन फोर्स ऑन द स्फीयर इज दिस, नो इट इज इक्वल टू दिस, एक्चुअली अब्सॉर्बिंग में ये दिया है। अब देखो अब्सॉर्बिंग में कैसे निकालोगे आप, तो सारा कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि इस केस में तुम्हारा लाइट सारा का सारा अब्सॉर्ब हो रहा है। सो इफ लाइट इज गेटिंग अब्सॉर्ब, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या, सॉरी मोमेंटम क्या है, h by lambda, ठीक है, and light is getting absorbed, so force basically is acting along this direction only, because every photon is getting absorbed in this sense, so whatever force has acted along this line, and that has actually made photon come to rest,
ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इनिशियल मोमेंटम लिखोगे ना सिंगल फोटोन का एच बाई लैम्डा, फाइनल इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम विल बिकम एच बाई लैम्डा। कोई भी ऐसा एंगल पे ले लो, ठीक है, थीटा वाला ही केस ले लो। सो व्हाट विल बी द केस, डेल्टा पी इज दिस एंड हियर यू विल बी राइटिंग, आई मीन एरिया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आप निकाल लो, दैट विल बी अगेन आई डॉट डी ए। ठीक है। सो दिस स्मॉल एरिया, एरिया का नॉर्मल अभी भी, नॉर्मल टू द एरिया इज अभी भी अलोंग दिस लाइन। सो आई डॉट डी ए तुम्हारा क्या होगा, आई डी ए कॉस थीटा, एंड यहां से डी ए का वैल्यू जो हमने पहले निकाला था उसी को रखेंगे, 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई r² sin θ d theta, right? And then cos theta. So this is your sort of force, right? And this force is acting along this direction only, so you don't need to take any component. Rather, this is the small force, and in order to get the total force, you will integrate it. अगर आप इसको integrate करते हो, sorry, कुछ तो मिस किया ना मैंने, दिस इज आई डी ए कॉस थीटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो मैं ना कुछ भी गड़बड़ कर सकती हूँ कभी भी। So this was your what? IDA cos theta, right? So this is your IDA cos theta, number of photon falling per second. अब देखो total rate of change of momentum तुम्हारा क्या होगा, h by lambda into, sorry, this by hc by lambda होगा, please forgive me for this, ठीक है। सो h बाई लैम्डा इंटू आई इंटू 2 पाई r² साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल दिस। देखो मैं बार बार ना पूरा ही लिख रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मोर बेटर वे। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, πr² / c, 2 sin θ cos θ क्या हो जाएगा, sin 2 θ d थीटा, इंटीग्रेशन में जाएगा ऐसा, आई का वैल्यू रख लो, ठीक है। सो दिस विल वेरी फ्रॉम 0 से π/2। अब ये वैल्यू क्या होने वाला है तुम्हारा, चेक कर लो आप इसको, sin 2 θ का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इफ यू डू। सो sin 2 θ को आप क्या लिखोगे, I mean, this will nothing but minus cos 2 θ/2, right? And so I pi r² / c और 2c लिख लो यहाँ पे, cos 2 θ माइनस साइन के साथ 0 से π/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप π/2 करते हो तो कितना वैल्यू आएगा बताओ, cos 2 into π/2, so 2 cancel, cos pi that is -1 minus of 0, cos 0, right? So -1, so -2 minus minus plus हो जाएगा 2। So again we are getting same, right? I into πr² / c. So sort of that option will be correct, जहाँ पे absorption के लिए कितना लिया था तुम्हारा, absorption के लिए लिया था ये, so B will be correct. Now we need to check D, ठीक है। अब डी को चेक करो, हियर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0.3, सो रिफ्लेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी निकाला था, इसको चेक करने के लिए वहां पे ओनली यू मल्टीप्लाई दैट थिंग बाय 0.3 एंड देन यू मल्टीप्लाई सेकेंड वन बाय 0.7। सो फर्स्ट वन का आंसर क्या आया था हमारा, 0.3 इंटू हो जाएगा πr² बाई सी, और सेकंड में क्या होगा 0.7, अगेन सेम थिंग, आई πr²/c। सो सॉर्ट ऑफ ये कितना आएगा, आई πr²/c। सो इट इज सॉर्ट ऑफ not going to change, every time it is going to be the same. So I hope you have understood this question. I hope you understood कि completely जब लाइट absorb होगा तब हमें कैसे लेना है। So जिस direction में भी लाइट फॉल किया है उसी डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो हो रहा है, सो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगेन फोर्स कुछ ऐसे ऐसे लगेगा ना, इस आई मीन फोटोन पे फोर्स ऐसे लगा होगा, तभी उसका इस डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो हुआ होगा। सो फोर्स ऑन फोटोन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड ऑन द सर्फेस इट विल एक्ट ऑन दिस डायरेक्शन, राइट। सो इन द केस ऑफ कंप्लीट अब्सॉर्प्शन, फोर्स हमेशा अलोंग द लाइट डायरेक्शन लगेगा, and if effective area is along the light direction it's fine, if not you will get two forces, one perpendicular to the surface, another parallel to the surface, ठीक है। and in case of reflection you are going to get force exerted always along normal to the surface. So I hope you have understood this question. I hope I was able to make it all clear.
But even if not, you can always let me know in the comment section. Thank you so much for asking this question, and thank you so much for staying here. Take care of yourself and keep on practicing more number of questions. Bye bye.